Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium subject maths. Now learn two important theorem. After completed this theorem, now in this lecture we have to discuss about exercise 6.5. Question number 1. Use of these two theorem, we can solve the sum of exercise 6.4. First question of exercise 6.5. Sides of triangle are given below. Determine which term of right angle in case in the term of right angle, in case right angle, we can length of this hypotenuse, यानी कि आपको एक साइड दी गई है, तीनों साइड के मेजरमेंट आपको दिए गए हैं, वो मेजरमेंट में से आपको कौन सी जो मेजरमेंट तीनों है वो राइट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट करती है वो आपको चेक करना है. तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चंस आर गिवन 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. जो लॉन्गेस्ट साइड, अब हमें थियरम पता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोथेनस होगी, यानी कि आपकी फिगर इस तरह से आएगी. ए बी सी, बी इज अ राइट एंगल, ए सी इज अ हाइपोथेनस, इट मीन्स ए सी इज अ longest side of this triangle ABC. So longest side is what? Longest side is 25 centimeter. So we know that 25 centimeter square is equal to sum of other two side. 25, it means 625 is equal to 49 plus 24 square, it means 576. So 625 is equal to 625. It means in a right angle the longest side is hypotenuse. So last statement we can written down 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeters is a right triangle, is a right represented right triangle, and length of this hypotenuse is 25. 25 is the longest side, and in right angle, so right triangle, longest side is hypotenuse, therefore 25 is the longest side and also hypotenuse of this right angle triangle. So remains 2, 3 and 4 questions. Check out in homework. So question 1 is here completed. In similar way we have to check out all questions and find out this pair or this triad are triangle or not. अगर यहाँ पे आप स्क्वायर का जो एडिशन करोगे, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और रिमेन्स टू साइड का स्क्वायर का एडिशन इक्वल आता है तो वो राइट एंगल कहलाएगा. पाइथागोरस थ्योरम ही है. इज नॉट इक्वल, सो वी कैन नॉट से दैट इज अ राइट ट्राइंगल. बस इतना आपको चेक करना है. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पॉइंट पी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो पी है वो 90 डिग्री दिखाना है. आफ्टर देन एम इज अ पॉइंट ऑन अ क्यू आर, पी क्यू एंड आर. और यहां पे आप लिख सकते हो आर. यहां पे हमने यूज किया क्यू, पॉइंट ऑन दिस ट्राइंगल. नाउ such that PM is perpendicular to QR, PM is perpendicular to QR, then so that ये आपको प्रूव करना है PM square is equal to QM into MR. ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ आंसर. दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव. इन ट्राइंगल PQR, एंगल P is equal to 90 degree and M belongs to QR. और ऐसा भी आप लिख सकते हो पॉइंट M on a QR is also PM is perpendicular to QR. Let's start.
ट्राइंगल RMP is similar to triangle PMQ is also similar to triangle RPQ. ये कैसे प्रूव होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ट्राइंगल and whole triangle, this second small triangle and whole triangle, and last these two small triangle. So one is a common angle for this triangle, it means this small triangle. ये जो आप स्मॉल ट्राइंगल देख रहे हो उसमें ये 90 डिग्री है और पूरे ट्राइंगल में P 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जितना M है यहाँ पे उतना P होगा. तो इसी तरीके से अब ये तीनों हमने प्रूव किया है. उनमें से एनी टू पेयर हमें चूज करनी है. तो यहाँ पे ट्राइंगल RMP सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ. सो ये पेयर में से हमें प्रूव जो करना है वो PM² इज इक्वल टू RM इंटू दिस MQ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे PM लास्ट टू, सो MQ एंड फर्स्ट टू एंड लास्ट टू. PM यहाँ पे हो गया, देयरफॉर PM² इज इक्वल टू MQ इंटू RM. MQ इंटू RM और MR बोथ आर राइट. तो इस तरीके से ही आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर इन अ गिवन फिगर ABD is a triangle right angle at A. फिर से आपको फिगर दी गई है यहाँ पे. एंगल A is a right angle triangle ABD. In ABD, angle A is a right angle. AC is perpendicular to BD. तीनों स्टेटमेंट आपको प्रूव करने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट लेके स्टार्ट करते हैं हम. AB² इज इक्वल टू BC इंटू BD. AB² इज इक्वल टू BC इंटू BD. तीनों स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो ये ट्राइंगल यानी कि AB, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल हुआ, सेकंड ट्राइंगल हुआ और ये होल ट्राइंगल को हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे. तो तीनों ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल प्रूव करना हो तो सिमिलरिटी आपको चाहिए फर्स्ट ट्राइंगल की होल ट्राइंगल से. सेकंड ट्राइंगल में कुछ प्रूव करना हो यानी कि AD साइड रिलेटेड कुछ प्रूव करना हो तो सेकंड ट्राइंगल एंड होल ट्राइंगल लेना होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल ABC है क्योंकि AB² यहाँ पे आता है, तो फर्स्ट ट्राइंगल की सिमिलरिटी लेनी होगी होल ट्राइंगल के साथ. इन ट्राइंगल ABD, लेट्स स्टार्ट विथ आंसर. ABD इज अ राइट ट्राइंगल एट A and AC is perpendicular to BD. AC is perpendicular to BD. Now triangle BCA की जो थी BCA and ACD is similar to whole triangle. Angle C is a right angle, here angle C is a right angle, here angle A is equal to right angle, therefore in a middle. और एंगल B and D, तो यहाँ पे एंगल B और यहाँ पे एंगल D. ये तीनों सिमिलरिटी हम देख चुके हैं. कैसी सिमिलरिटी यहाँ पे, तो BCA सिमिलर टू एंगल C बीच में आएगा ACD एंड लास्ट में ABAD. सो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे हम ये. फर्स्ट के लिए BCA is similar to whole triangle BAD.
फर्स्ट प्रूव करना हो तो फर्स्ट एंड होल ट्राइंगल, सेकंड के लिए सेकंड एंड होल ट्राइंगल, एंड थर्ड के लिए फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल। तो ये होल ट्राइंगल है और ये फर्स्ट ट्राइंगल है। नेक्स्ट ए बी इज डिवाइड बाई डी बी, यानी कि हमने फर्स्ट जो पार्ट किया फर्स्ट एंड लास्ट लिया, तो यहाँ पे आ गया बी एंड डी, फर्स्ट लास्ट लिया। अब बात करते हैं हम सी बी, फर्स्ट टू ले लेते हैं सी बी एंड बी ए बी एंड बी ए, देयरफॉर आ गया आपका ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डी बी एंड सी बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी प्रूव। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करना हो तो सेम मेथड है, सेकंड स्टेटमेंट ले लो। सेकंड स्टेटमेंट के लिए ये ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी, तो उसमें अगर पैर लेनी हो तो प्रूव क्या करना है आपको, ए सी स्क्वायर बी सी ए सी डी एंड बी ए डी। तो प्रूव क्या करना है आपको उसमें, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल देखो ए डी कहां पे है, फर्स्ट और लास्ट में है, और दूसरा फर्स्ट और सेकंड में है। तो यही पेयर लेनी है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट पेयर ले लो ये वन टाइम। तो वहां पे ए डी फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट कौन है, यहाँ पे बी डी। उसी तरीके से यहाँ पे ए डी लास्ट में है तो लास्ट टू टर्म ले लो, सी डी डिवाइड बाई ए डी, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया आपका, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। सेम मेथड अप्लाई करके आपको थर्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। सो थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में, इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, इन एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। आइसोसेलेस का मीनिंग होगा टू साइड्स आर इक्वल, एंड यहाँ पे राइट एंगल भी आपको दिया गया है, तो दो पार्ट यहाँ पे आपको दी गई है। एंगल C is a right angle, therefore 90 degree. These sides are equal because isosceles triangle. So triangle ABC is a isosceles triangle at a right angle at point C. AB is a hypotenuse and other two side, it means BC is similar to AC. Triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, पूरा आपको लिखना है PhD, उसका फुल फॉर्म नहीं है बट मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC square plus AC square. Therefore, AB square is equal to, both side are equal, BC और AC दोनों साइड इक्वल है, तो in place of BC we can take AC because BC is similar to AC in given, क्योंकि वो isosceles triangle है तो ऑलरेडी इक्वल होगा। Therefore, AB square is equal to 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया, इसलिए आपका आंसर आता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू BC। If AB square is equal to 2AC square, then prove that ABC is a right angle। यहाँ पे आपको डिफरेंट दिया गया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे दिया गया है, तो ये 90 डिग्री प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन अपोजिट है, तो इन ट्राइंगल ABC कौन कौन सी चीजें आपको दी गई है, AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर आर ऑलरेडी गिवन। तो लेट्स स्टार्ट विथ हियर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। 2AC को कैसे लिख सकते हैं हम, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो AC है
ये जो AC है उसकी जगह पे हम यूज करेंगे BC, बिकॉज AC इक्वल टू BC आर गिवन, सो BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर. This statement is a converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. Therefore, triangle ABC is a right triangle at point C is equal to 90 degree. So in this statement we can prove एंगल C इज इक्वल टू राइट एंगल, और अगर राइट एंगल दिया जाता है तो आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट फाइंड किए. इन टुमारो लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. सो कंप्लीटेड. और अगर आपके जो 4 थ्योरम में से एनी थ्योरम में डाउट्स हो तो पहले क्लियर कर लो, प्रैक्टिस करो. टोटल 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.